خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں تمام عزیزوں کو سلام۔ کلام خدا میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے امثال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور پہلے باب کی 7ویں آیت کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ کلام خدا میں پاک کلام میں لکھا ہے، امثال کی کتاب میں پہلا باب اور پہلے باب کی 7ویں آیت میں خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ چرچ میں آئے ہوئے تمام عزیزوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بچوں کو، بچیوں کو خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں سلام پیش کرتا ہوں۔ And the viewers who are watching us live at Facebook, I also ask blessings of God for them as well. کلام خدا میں آج ہم غور کریں گے تعلیم پر، اور ہمارا عنوان ہے آج کا ایجوکیشن اینڈ بائبل۔ تعلیم اور بائبل ہمیں ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں کیا بتاتی ہے، اس کو ہم کلام میں سے دیکھیں گے۔ پاک کلام میں خدا کا بندہ سلیمان امثال کی کتاب میں پہلے باب کی 7ویں آیت میں فرماتے ہیں، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ اور میں نے بھی اپنی ابتدائی زندگی میں 2 چیزیں میری ماں نے مجھے بتائیں کہ انسان 2 طریقوں سے پڑھتا ہے، یا خوف سے یا شوق سے۔ اگر شوق ہے تو کوئی نہیں کہے گا، لیکن انسان خود ہی پڑھتا چلا جائے گا، یا پھر خوف ہوگا کہ پوچھا جائے گا تو وہ پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب ہم خدا کے خوف کی بات کرتے ہیں تو یہ خوف جو ہے ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اس خوف میں خوف نہیں بلکہ محبت پائی جاتی ہے۔ یہ خدا کی محبت ہوتی ہے کہ انسان ترتیب پا جائے، انسان مضبوط ہو جائے، انسان ترقی کر جائے، انسان کی زندگی بہتر ہو جائے۔ اور کلام میں خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ کلام سب کے لیے ایک جیسا ہے، اور اگر میں آپ کو کلام کا، خدا کا کلام سکھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، تو سب سے پہلے یہ کلام میرے لیے ہے۔ اور جب میں اس چیز پر غور کرتا ہوں تو اس آیت میں 2 حصے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک ہے کہ خداوند کا خوف جو ہے وہ علم کا شروع ہے، اور دوسرا ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ اینڈ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے آج بہت سے لوگ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں، زندگی کو ترتیب دیں، زندگی میں بلند ہوں، آگے بڑھ جائیں، دکھوں کو، اذیتوں کو، پریشانیوں کو برداشت کریں، وقت گزارے خدا میں، وقت گزارے کچھ سیکھنے میں، وہ اس چیز پر دھیان نہیں دیتے۔ اور اس میں بعض کا تو یہ بھی ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے میٹرک کر لیا، FSC کر لی، گریجویشن تک پہنچ گئے، لیکن اپنی زندگی کو سمت نہ دے سکے، اپنی زندگی کو سنوار نہ سکے۔ And this time، اس وقت this is the biggest dilemma، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کلیسیا پاکستان کا۔ ہم دوسروں پر الزام دیتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، ہم نے یہ کیا، یہ ہو گیا،
لیکن ہم اپنی خاندانی زندگیوں پر غور نہیں کرتے. اور پھر یہاں پر مدر از دا مین ریسپانسبل. ماں مین ریسپانسبل ہے بچے کی تعلیم و تربیت کی. باپ کے باری بعد میں آئے گی. ماں بائبل مقدس میں خدا کے کلام میں خدا یسوع مسیح کی تعلیم و تربیت مقدسہ مریم نے کی تھی. اور جب خدا یسوع مسیح یروشلم میں رہ گئے تو پہلے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کو پتہ چل گیا. وہ ذرا فرسٹریٹ تھی, پریشان تھی کہ میرا بیٹا کہاں پر رہ گیا. یعقوب کو جب برکت ملی تو اظہار سے برکت لینے میں مدد جس نے کی وہ ماں تھی. ماں تھی. روت ایک ماں تھی. سو کلام خدا میں ایسی بہت سی ہمیں شخصیات ملتی ہیں جن ماؤں نے خاندانوں کو جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. کلام خدا میں پاک کلام میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دوسرا حصہ ہے آیت کا, لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں. اور ہم یہاں پر بڑا کہتے ہیں کہ آ جائیں ہمارے پاس, جو کچھ ہے وہ لے لیں. آج صبح ہی بہت سے اور لوگوں نے شاید اس سٹوری کو سنا ہو. تھوڑی سی خاصی انٹرسٹنگ سٹوری تھی کہ دو باز ایک بادشاہ کے پاس ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ دونوں اڑے. اب ایک تو اڑتا ہے بڑا ہو کر فضاؤں میں, بلند پرواز ہے, لیکن دوسرا جو ہے وہ ایک شاخ پر بیٹھا ہوا ہے اور اسے سیم فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, سب کچھ اسے مل رہا ہے, لیکن وہ شاخ پر ہی ہے. بادشاہ اپنی پوری کوشش کر بیٹھا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے, اس کو ترغیب دینے کے لیے مختلف لوگوں سے صلاح مشورہ کر کے سب کچھ کیا ہے, لیکن وہ وہاں کا وہاں ہے. اور آخر کار ایک شخص اسے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. بادشاہ نے اس کے لیے انعام بھی جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے, انعام بھی ٹھہرا دیا ہے. اور آخر وہ شخص آتا اور بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ اب میں اس باز کو اڑا کر دکھاؤں گا. اور بادشاہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی ٹرائی کر لے, دوسروں نے کوشش کی ہے تو بھی کوشش کر لے. اور اس کہانی میں مختصراً بیان کرتا ہوں کہ اس نے اپنی کوشش کی ایک, اینڈ ان سیکنڈ اٹیمپٹ دوسری کوشش میں اس نے باز کو اڑا دیا. اب بادشاہ کے پاس بادشاہ نے اسے بلایا کہ بتا کہ کیسے یہ باز اڑا ہے. اور اس نے کہا کہ بادشاہ میں نے اس شاخ کو ہی کاٹ دیا جس پر یہ بیٹھا. اس کا آسرا جو تھا, جس پر یہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس شاخ کو ہی کاٹ دیا تاکہ آگے اڑ جائے. اڑے. ہم اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہتے ہیں. جو ایلڈر ہے وہ ایلڈر ہی ہے, جو ڈیکن ہے وہ ڈیکن ہی ہے, جو مبشر ہے وہ مبشر ہی ہے. آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. میں بہت سال پہلے سفر کر رہا تھا, اپنے چھوٹے بھائی میرے بہن کا بیٹا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیم نیچر ہے آلموسٹ میری اور اس کی. وہ مجھ سے چھوٹا ہے 10 سال رکھے. اور میری کشمیر کی جو سڑکیں ہیں وہ زگ زیگ کرتی ہیں. جب زلزلہ آیا تھا اس وقت, اس کے بعد سال بعد میں گیا اس کے ساتھ, اور وہاں پر میں اور وہ اور گاڑی ہے, اور گاڑی میں بات ہو رہی ہے کہ ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنے رشتوں کی, اپنی جگہوں کی, اپنی نیند کی, اپنے آرام کی. اگر ہم نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. لیکن آج کلیسیا سو رہی ہے. جس کو 20,000 مل رہا ہے وہ کہتا ہے دس از انف, حالانکہ وہ کافی نہیں ہے اس کے لیے. ہم کوشش ہی نہیں کرتے, ہم کوشش ہی نہیں کرتے. ہمارے پاس بہت وقت آتا ہے, جو گھر میں آ جاتا ہے وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے. and still there are so many families, جو گھر میں آ گیا وہ گھر میں آرام کرے. جی ہمارا آرام ہی ختم نہیں ہوتا. اور ابھی تو میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ بہت سے خادم جو ہیں وہ ارلی ان دا مارننگ تقریباً 3:45-4 بجے سے جاگنا شروع ہو جاتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں.
लेकिन कलीसिया अभी भी सो रही है। कलीसिया ने अपना सिस्टम खराब कर लिया है। हमने कहीं जाना होता है, उससे 15 मिनट पहले हम जागते हैं, तो फिर हम लेट ही जाएंगे, हमारी प्रेपरेशन पूरी नहीं होगी। कलीसिया को जागना पड़ेगा अगर हमने तरक्की करनी है, माली तौर पर तरक्की करनी है, जिस्मानी तौर पर बढ़ना है। सो के तो इंसान रह जाता है, कमजोर हो जाते हैं मसल्स। अगर जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, रूहानी तौर पर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी आराम तलबी की जिंदगी को तरक करना पड़ेगा, वरना जिंदगी गुजर जाएगी। जाना सबने मट्टी के नीचे है, लेकिन जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन एक शख्स की, 2 शख्स जमीन पर आए, एक ने मेहनत की, वो ऊपर चला गया, दूसरा वैसे का वैसे रह गया। जिंदगी हर किसी की गुजरनी है। खुदा सबसे मोहब्बत करता है, खुदा सबको खाने के लिए देगा, और खुदा देता है, क्योंकि उसने तो फरमाया, उसने तो कहा कि मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। खुदा देता रहा, कौम इस्राएल को देता रहा। खुदा यीशु मसीह के आगे पीछे 5000 लोग थे, यीशु मसीह ने उन्हें खाने के लिए दिया। 4000 आए, उन्हें खाने के लिए दिया। खुदा तो सबसे मोहब्बत करता है। सूरज को देखे बाहर, नेक और बद दोनों पर चमक रहा है, बिल्कुल बराबर। खुदा तो देगा। दिस इज लव ऑफ गॉड। खुदा खाने के लिए देगा, लेकिन कोई अपने घर में बैठा खा रहा है, बिल्कुल नीचे बैठकर, कोई टेबल पे बैठा है। किसी का घर 2 मरले का है, किसी का 1 कनाल में है। जो मेहनत करेगा वो ऊपर जाएगा, जो पढ़ेगा लिखेगा, जो मेहनत करेगा वो ऊपर जाएगा। हर काम में हम देखते हैं, लेकिन अहमद हिकमत और तरबियत की हकारत करती है। जुनून सब कुछ कर सकता है। जब हम में जज्बा हो कि हमने कुछ करना है, तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं, फिर सब कुछ किया जा सकता है। नामुमकिन कुछ नहीं है। कर हम सब कुछ सकते हैं, लेकिन हम अपने आराम को और हमारे अंदर जो शिकस्त की नेचर डाल दी इब्लीस ने, उस पर हम हावी ही नहीं हो पाते। क्योंकि यस आई कैन डू, हाँ मैं ये कर सकता हूं। बारिश है, पानी है, मैं बाहर जा सकता हूं, पानी मुझे पिघला नहीं देगा। हमें कुछ करना है। और खुदा के कलाम में आज हम देखते हैं, खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। अब इल्म है क्या? इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स को देखेंगे, मिलते जुलते अल्फाज को देखेंगे, तो हमें बहुत से अल्फाज मिल सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि नॉलेज भी है, विजडम भी है। विजडम को बिलखसूस यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं ध्यान करूंगी द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। कुछ लेने का जो तरीकाकार है उसे इल्म कहा गया है। और गिविंग सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस स्पेशली एट स्कूल, या फिर एक तरीके से कुछ हदायत खास तौर पर जो स्कूल में दी जाती हैं, ये इल्म है। और इसको लेने के लिए हमें कोशिश करनी है। इसके लिए हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं। इसके लिए हम मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। लेकिन बच्चे जब जरा सर उठाते हैं तो बच्चे सब कुछ छोड़ जाते हैं। नो, आई एम टू ऑल द चर्चेस इन पाकिस्तान में जितने चर्चेस हैं, और जो कोई ये पैगाम लाइव सुनता है या रिकॉर्डिंग सुनता है, जरा हम गौर करें कि हमारे चर्च ने कितने डॉक्टर्स पैदा किए, और रिजल्ट तकरीबन नील आएगा, 0। हमारे चर्च से कितने इंजीनियर्स बने, रिजल्ट होगा 0। चर्च से कितने आर्मी ऑफिसर्स बने, रिजल्ट आएगा 0। चर्च से कितने वकील बने, चर्च आएगा 0। चर्च से कितने बड़े 5 स्टार होटल्स के मैनेजर बन गए, रिजल्ट आएगा 0। 0 0 ऑल पोजीशंस
अपर पोजीशंस, नो क्रिश्चियंस, कोई मसीही नहीं। बहुत कम शादो नादर नजर आएंगे, बाकी सारे बीमार नजर आएंगे, बाकी सारे लाचार नजर आएंगे, बाकी सारे गरीब नजर आएंगे, बाकी सारे तंगदस्त नजर आएंगे, बाकी सारे मायूस नजर आएंगे। ये सारी तादाद है। और जब ये होगा तो फिर हमारे साथ वही कुछ होगा जो होता आया है और होता रहेगा। सबसे पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है। अगर मैं ठीक नहीं तो मेरा घर ठीक नहीं, अगर मैं ठीक नहीं तो मेरी गली ठीक नहीं, अगर मैं ठीक नहीं तो मेरा मोहल्ला ठीक नहीं। हमें अपने आप को ठीक करना है। हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और चर्च में आज ये प्रॉब्लम है कि एजुकेशन को वैल्यू नहीं दी जा रही। हम दयायकी को भी, थैंक्स गॉड, दयायकी दी जा रही है, ऑफरिंग्स दी जा रही हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन वेयर इज एजुकेशन? एजुकेशन कहां पर है? तालीम को हमें वैल्यू देनी है। कलाम में से हम देखेंगे, जरा देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस आज से हजारों साल पहले तालीम के बारे में 3 हमें इसको कैटेगरीज में देखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह से पहले, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में और यीशु मसीह के बाद तालीम क्या थी। कलाम में से हम देखेंगे, आएंगे हम जरा डैनियल की किताब में, खुदा के कलाम में से डैनियल की किताब, उसका पहला बाब जिस तरह इंसान की किताब है उस तरह पहला बाब डैनियल का भी देखने हैं। और पहला बाब यहां पर 3 ऐसे, और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार स्पिन्स को हुक्म किया कि बनी इस्राएल में से और बादशाह की नस्ल में से और शिरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिशवर और साहिबे इल्म हो, जिनमें यह लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम दे। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मैह में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो। आमीन। यहां पर देखें, पहली तो बात, दे आर ऑलरेडी एजुकेटेड। मुकद्दस डैनियल, हननिया, मिसाइल और अज़राया ये पहले ही पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि इनके लिए यहां पर कहा गया है खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में। और बादशाह ने ख्वाजा सराओं के सरदार से ये कहा है कि वो बेऐब हो, जवान, खूबसूरत, हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश और साहिब इल्म हो। इल्म पर उन्हें ग्रिप हो, वो मजबूत हो, वो खूबसूरत हो। और हमारे कल्चर में कोई बच्चा या बच्ची, उसका कोई रंग रूप जरा से ठीक हो तो वो किसी को कुछ समझ देगा। यहां पर इनकी जिंदगियों पर गौर करें, ये खूबसूरत हैं। कलाम वाज़ेह तौर पर कहता है कि ऐसे हो जो बेऐब जवान हो और खूबसूरत हो, खूबसूरत भी हैं, हिकमत में माहिर भी हैं, दानिशवर भी हैं, साहिब इल्म भी हैं। और फिर कलाम में लिखा है कि उन्हें कसदियों का इल्म सिखाया जाए। अब एक इल्म वो है जो उन्होंने 12 साल तक, यहूदियों का 12 ईयर्स, यहूदियों के 12 साल बच्चों के बड़े अहम हुआ करते थे। उसमें बच्चों को शरीयत के बारे में, सहायत के बारे में सब कुछ सिखा दिया जाता था। अब इन्होंने यह सब कुछ भी सीखा है, इल्म से मोहब्बत की है। और कलाम बयान करता है कि जब इन्हें कसदियों के इल्म के लिए चुना गया है तो दे डोंट रिफ्यूज, इनकार उन्होंने तब भी नहीं किया, लेकिन इल्म जो इनके पास है उस इल्म को इन्होंने इस्तेमाल किया है। और जो उससे जो मैं थी और जो इन्हें खाने के लिए दिया जा रहा था उससे इन्होंने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि इन्हें इल्म था। इल्म होता है तो कोई बात करता है, कानून का पता होता है तो कोई बात करता है, किसी जगह का पता हो तो बंदा पहुंचता है। अगर इल्म नहीं, अगर पता नहीं कानून क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, तो हम तो अपनी जिंदगियां जानवरों की तरह गुजारते चले जाएंगे।
बट वी आर द ह्यूमन बीइंग। लेकिन हमें तो खुदा ने इंसान और अशरफुल मखलूकात बनाया है, और यीशु मसीह के वसीला से हम अशरफुल मखलूकात बनते हैं। तो कलाम अजीजों बयान करता है कलाम खुदा कि दानियल को, हननिया को, मिसाइल को, अज़राया को, इनके पहचान भी खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान खत्म नहीं होने दी। हम तो पता नहीं क्या कुछ तब्दील कर बैठे हैं, 4 पैसों के लिए हम तो सब कुछ बेच देते हैं। और कलाम बयान करता है कि उन्होंने एक आला मर्तबा पर पहुंच रहे हैं, तालीम पहले भी पाई है और भी पाने के लिए तैयार है। और यकीन जाने मैं अक्सर खानदानों में जब विजिट करता हूं तो मैं कहता हूं कि इफ आई हैव अ चांस, मुझे इस उम्र में भी मौका मिल जाए, मेरे पास सोर्सेज हो, मेरे पास वक्त हो, तो मैंने 1.5 साल मैंने इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी किया मास्टर्स में, बट आई कुड नॉट अपीयर, मैं हो नहीं सका अपीयर बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज आई वाज फ्रॉम द लो क्लास, नीचे से खुद मेहनत करके ऊपर आए थे, इतना पैसा नहीं था, वक्त नहीं था, जिम्मेदारियां बहुत थी, पढ़ा जरूर और सख्त मेहनत करके पढ़ा, कोशिश की कि आगे बढ़ूं, अपीयर नहीं हो सका। अब मुझे वक्त मिले, अब मेरे पास बेहतर सूरत हाल है, अब मुझे वक्त और वसाइल थोड़े से और मिल जाएं तो मैं मास्टर जरूर करूं, मैं एमफिल जरूर करूं, मैं पीएचडी जरूर करूं, और पीएचडी करके मैं अपने साथ लगाऊं डॉक्टरों में। ऐसे पैसे देकर डिग्री ना लेने वाला ना बनूं। एजुकेशन 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 कैन चेंज द लाइफ। तालीम ही जिंदगियों को बदल सकती है, और किसी तरह आप अपनी जिंदगियों को बदल नहीं सकते। हमारे पास भी अपना घर नहीं था, लेकिन हमने खुदा की शुक्रगुजारी करते, एजुकेशन, तालीम, और आज खुदा का शुक्र है कि हम खुदा के घर को भी चला रहे हैं और अपना घर भी है। तालीम पढ़ें। हर कलाम में हम देखते हैं कि दानियल, हननिया, मिसाइल, अज़राया ये पहले भी पढ़े लिखे हैं, और जब 3 साल के लिए और पढ़ने के लिए मौका मिला है तो उन्होंने उस तालीम को भी कहा ओके वी आर रेडी, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम सीखने के लिए तैयार हैं, हम वी आर रेडी, हम इनकार नहीं करेंगे, जो चीज हमें सूट नहीं करती वो हम नहीं खाएंगे, हम साग पात खाकर ही इतने मजबूत हो जाएंगे, हमारे जहन इतने मजबूत हैं, हमारे जहन इतने खुदा के कलाम से रोशन हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे। और कलाम बयान करता कि उन्होंने तालीम को ना नहीं की, और हम जल्दबाजी की जिंदगियां गुजारते हैं, हम जल्दबाजी की जिंदगियां गुजारते हैं, लेकिन इन्होंने जल्दबाजी की जिंदगी नहीं गुजारी। और कलाम बयान करता कि 3 साल हालांकि पढ़े लिखे हैं, इन्होंने तालीम हासिल करने में गुजार दी है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती कि फिर जब बादशाह के ख्वाब की ताबीर आई है, बादशाह को जब इसकी जरूरत पेश आई है, तो इसने जो काम किया दूसरे नहीं कर सके, बिकॉज ही वॉज हैविंग 2 डिग्रीज। उसके पास 2 डिग्रियां थी। हम 1 डिग्री को लिए फिरते हैं और उसमें भी हम मास्टर नहीं होते। हम बड़ी दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआ तो ऐसी दुआ होती है जिसमें मैंने ऐसी दुआएं सुनी हैं जो खुदा को सुनाने वाली, क्या खुदा देख मैंने तेरे लिए रोजा रख लिया। हम ना दुआया जिंदगी में, ना प्रस्तिश की जिंदगी में, हमारे पास तो वो सर्टिफिकेट भी पूरा नहीं होता, लेकिन इनके पास दे हैव डिवाइन डिग्री एंड दे हैव सोशल डिग्री। दुनियावी तालीम की डिग्री भी और रूहानी तालीम की डिग्री भी इनके पास है, क्योंकि जिन ख्वाबों की ताबीर कोई ना कर सका, दानियल ने उन ख्वाबों की ताबीर, उस ख्वाब की ताबीर कर दी। सो तालीम पढ़ें, जिंदगी को मजबूत करें। नदीम साहब आते हैं, बाजी से बात कर रहा था, उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन जब मसीह को कबूल किया तो फिर उन्हें पता चल गया कि इस मसीह को कबूल किया है तो बाइबल के बगैर मेरा गुजारा नहीं। और उन्होंने पूछा, इससे पूछा, उससे पूछा, ये किया, वो किया, आखिरकार उन्होंने बाइबल मुकद्दस को पूरा पढ़ लिया और फिर हर तरह से सीखा। साल लगाए कि कोई बात नहीं, चले मैं स्कूल नहीं जा सका, लेकिन मैं बाइबल मुकद्दस को तो पढ़ लूं। और बदकिस्मती ये अब एक और बड़ी मैं बताने लगूं बात
کہ ہمارے ہی ایریاز میں اسی ادھر بدر کالونی میں ایسے لوگ بھی بستے اٹھائے پھرتے ہیں جنہیں آپ یہ کہہ لیں کہ بائبل کھول کے کوئی ایک لفظ پڑھ لیں تو انہیں پتہ نہیں. یہ ہماری خدمت ہے. اور جو دعائیں ہم بڑی کرتے ہیں, شفائیں ہم بڑی دیتے ہیں, ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر 10 سال ہو جائیں میں دعائیں کر رہا ہوں, شفائیں بڑی دے رہا ہوں, تو پھر کیوں نہ میں بائبل مقدس کو تو کم سے کم پڑھوں. ہم نہ سکول جانا چاہتے ہیں, ہم نہ چرچ جانا چاہتے ہیں, ہم نہ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں, ہم نہ کسی سے سیکھنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں ہم بڑے بڑے ٹائٹل. کلیسیا بھی بڑے ٹائٹل چاہتی ہے, چرچ بھی, پادری بھی بڑے بڑے ٹائٹل چاہتے ہیں, اور پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اس طرح کے پیغامات ذرا سستی پیدا کرتے ہیں, لیکن دس از ارجنٹ نیڈ آف دا ٹائم. ہیلو, چپ ہو جاؤ بھائی. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم اپنی زندگیاں کہاں پر گزار رہے ہیں. ہمارا تو کسی پر کیس ہو جائے تو ہمارا کیس لڑنے کے لیے کوئی کرسچن وکیل ہی اچھا نہیں ملتا. جو غریب بوڑھے چل رہے ہیں وہی چل رہے ہیں, یا کوئی ایک مل جائے تو بڑی مہربانی ہے پورے پاکستان میں کام کا. پھر مشکلات تو ہوں گی, پھر پریشانیاں تو ہوں گی. پاک کلام میں ذرا آگے بڑھتے ہیں, ہم ذرا جلدی سے میں اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کروں گا. ہم دیکھیں گے مقدس متی کی انجیل. اب ہمیں کہا کیا گیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. متی کی انجیل, اس کو ہم کہتے جی یہ ہمارے لیے سب سے بڑا حکم ہے. متی کی انجیل اس کا 28واں باب, اور 28ویں باب کی 19ویں اور 20ویں 2 آیات ہیں. چلے 18ویں ایسے آیتوں میں, 18ویں 19ویں 20ویں کہا جاتا ہے جی یہ ہمارا سب سے بڑا حکم ہے جی یسوع مسیح کی طرف سے. دا بگیسٹ, سب سے بڑا آرڈر ہے ہمارے لیے, ارشاد اعظم ہے جی, گریٹ کمیشن کے لیے ہمارے پاس. اب ہے کیا, یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اب کیا ہے, دنیا کو شاگرد بناؤ, اور پاک کلام میں لکھا ہے اور ان کو یہ تعلیم دو. اور تعلیم دینے والے نو آپ ہی کوئی نہ پتا ہے تو گل کتنے بنے گی. تعلیم دینے والے نو آپ ہی کوئی پتا نہ چلے. پادری ہو, بائبل اٹھائی ہو, اس کے سامنے ایک ایم اے پڑھا بچہ آ جائے, اسے کہ بھائی صاحب یہاں پہ مجھے بتائیں بائبل کے بارے میں. پادری کتوں پڑھے تھے, کتوں دسے, پاچ پھنس گیا, سیاپا پہ گیا زندگی چ. اور ایک کی وجہ سے سارے چرچ کی انسلٹ, بے عزتی کا سبب. باہر ہم دیکھتے ہیں لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, باہر ہم دیکھتے ہیں لوگ ایم بی اے کر رہے ہیں, باہر ہم دیکھتے ہیں لوگ ایم فل کر رہے ہیں, باہر ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے ایم اے انگلش کر لیا ہے. کہ پادری ان پڑھ جنہوں الف بے بھی نہیں آتی, تو پھر حال تو وہی ہونا ہے. اور شہ دینے والے ہم لوگ, بھائی صاحب کو اس ہو کے اندر کیا بات ہے میری بندے پہ. غلط چیز کو نہیں روکیں گے, غلط چیز آپ کو بھی تباہ و برباد کر دے گی. سیدھی بات ہے. اگر ایک شخص ان پڑھ ہے, بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. ایک ماں باپ ہے تو اس کے ماں باپ کے, اس ماں باپ کے پاس ماں باپ کی برکت ہے. جس نے گریجویشن کر لی اس کے پاس گریجویشن کی برکت ہے. جس نے ایم اے کر لیا اس کے پاس ایم اے کا لیول کی برکت ہے. جس نے کچھ نہیں کیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ آپ کی زندگیوں کو, آپ کے خاندان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دے گا. اور کیسے کرے گا کہ زیادہ لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب میں چاہتی ہوں, زیادہ موقع یہ خواہش ہوتی ہے, بھائی صاحب میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جب وہ خادم بن جائے, پادری ہونا چاہیے ہے, پاویں 5ویں فیل ہو جائے, زیادہ مانگی. تو جب پادری انہوں نے تو کہنا ایسا
जब अनपढ़ पादरी उनके घर विजिट करेगा तो बच्चों की तो सोच डेवलप हो जाएगी कि ठीक है काम चल रहा है भी, जिसको कुछ नहीं मिलता वो पादरी बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे आज लाइव ये बातें करनी पड़ रही हैं। जिसका कुछ नहीं चलता, चर्च को हमने किराने की दुकानें बना ली है, जिस वजह से हम तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हम ये गौर ही नहीं करते। मैं इस चीज को बुरा नहीं समझता, किसी के पास 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, लेकिन द पास्टर शुड बी मिनिमम एजुकेशन। मैं मैक्सिमम पे नहीं जा रहा, मिनिमम एजुकेशन मस्ट बी मैटर। ये मिनिमम कह रहा हूं, कम से कम। तो वो जज्बा जुनून खड़ा होया कि जज्बा जुनून है ना जी, मैनू पादरी बना दो, मैं तो पूरा 500-700 लोग इकट्ठे कर ले रिश्तेदार, तो जज्बा पढ़ाई वाली कितने सुत्ता च रह जाता है। भाई उरी 6 घंटे विजिट कर देते, अद्धा घंटा की अरबे नहीं सीख सकते। जब करना हो तो सब कुछ करते हैं। पैसे पल्ले ना हो, बाजी शादी यहाँ पे बैठी हैं, पैसे पल्ले ना हो, जब शादी करनी हो तो फिर सब कुछ करना पड़ता है। तो जब खिदमत करनी है तो बंदा क्यों नहीं सीखता? बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील में यीशु मसीह और यीशु मसीह की जिंदगी, जीसस क्राइस्ट द मोस्ट एजुकेटेड मैन, इतनी तालीम और तरबियत, इब्लीस इतना शातिर, इब्लीस इतना तेज, यीशु मसीह को आके कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कहकर रोटी बन जाए। और यीशु मसीह ने पुराने अहदनामा में से रेफरेंस दिया है। यीशु मसीह ने 7 सलीबी कलमात, जब आप रेफरेंस बाइबल में देखेंगे तो आपको ये सारे 7 सलीबी कलमात जो हैं वो पुराने अहदनामा में मिलेंगे। जब यीशु मसीह ने कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो ये चीज तो ज़बूर की किताब में लिखी है। यीशु मसीह जो बात करते थे हवा में बात नहीं करते थे। यीशु मसीह ने सीखा था, यीशु मसीह ने इल्म हासिल किया था। जीसस क्राइस्ट वॉज एन एजुकेटेड मैन, वो पढ़े लिखे थे, वो ऐसे नहीं करते थे। कलाम मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु मसीह गलील ही के इलाका में, चले आए जरा लूका की इंजील उसके 4 बाब में, लूका की इंजील उसका 4 बाब, लूका की इंजील उसके 4 बाब की 18वीं आयत। अब देखें हुआ क्या है, 17वीं आयत से आ रहा हूं। यह काम एक पढ़ा लिखा इंसान कर सकता, अनपढ़ नहीं कर सकता। अब मैं समझता हूं कि अगर मैंने आगे बात की है कि कम से कम मैट्रिक हो तो वो ये आयत उसको क्लैरिफाई करेंगे। कलाम तो वो पढ़ेगा सामने आकर जिसको पढ़ना आता है। यीशु मसीह 4 बाब 17वीं आयत 17वीं, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां यह लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। सहीफा दिया गया, बाइबल दी गई, तो यीशु मसीह ने सहीफे तो पढ़िया क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पढ़ना आंदा सी। हम कहते जी हम खुदा का रूह हमें दे देगा सब कुछ। हमने ये तरीकाकार बनाया है कि पढ़ना हमने कुछ नहीं, मेहनत हमने कुछ नहीं करनी और हमें सब कुछ आएगा। हडर अम्मा को रोड को तो कुछ नहीं देता। कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने सहीफे को लिया, उसे पढ़ा, पढ़कर सुनाया सबको। क्या यीशु मसीह एक पढ़े लिखे शख्स नहीं थे? कलाम बयान करता है। और फिर यूहन्ना इस्तबागी ने अपने 2 शागिर्दों को, जब यूहन्ना इस्तबागी कैद खाना में थे, यीशु मसीह के पास भेजे अपने 2 शागिर्द और कहा, पूछा आने वाला तू ही है, हम किसी और का इंतजार करें? तो यीशु मसीह ने फिर यशायाह की किताब में से रेफरेंस दे दिया। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, खुशखबरी सुनाई जा रही है। यह नहीं कहा कि आने वाला मैं ही हूं, शिफाएं देने वाला मैं ही हूं, यीशु मसीह मैं ही हूं, खुदा का बेटा मैं ही हूं, जिससे मोहब्बत की है खुदा ने। यह नहीं कहा, बल्कि कहा है कि जाकर बता दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, खुशखबरी सुनाई जाती है, लोग आजाद किए जाते हैं। ये जाकर बता दो, यूहन्ना को पता चल जाएगा।
क्योंकि ये निशानियां थी यीशु मसीह की। फिर यशायाह का रेफरेंस, कभी ज़बूर का रेफरेंस, कभी पैदाइश की किताब में से रेफरेंस, कभी 10 अहकाम के बारे में बात, कहा गया था दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, रेफरेंस। सहायक में से यीशु मसीह पढ़े लिखे थे, यीशु मसीह तालीम दे सकते थे, he was having authority, और दोनों सर्टिफिकेट थे, सोशल भी और स्पिरिचुअल भी, डिवाइन भी, सब कुछ यीशु मसीह के पास है। हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम खिदमत हो रही है जी बड़ी, तो खिदमत तो फिर वैसे ही होगी। और चलें जरा जल्दी से, कोई ज्यादा टाइम ना हो जाए। यीशु मसीह के बाद अब ये वो लोग हैं जिन्हें वैसे जरा कह दिया गया कि ये अनपढ़ हैं, बाइबल में जरा लिख दिया गया, तो हमने कह दिया लो जी शागिर्द भी तो अनपढ़ था। अब ये अनपढ़ लोग कैसे हैं इनको भी देख लेते हैं। ये मछेरा है, ये एक मछेरा है जो रात को सोता भी नहीं सी तरह से। क्यों नहीं सोता? क्योंकि यीशु मसीह की जब पहले मुलाकात हुई इससे, तो उसने कहा कि मालिक रात भर हमने मेहनत की है, मछली एक नहीं साढ़े हाथ लगी। ये कौन है भला? पतरस कहता खुदा सारी रात मेहनत किया, जाल फेंका है, मछली को नहीं मिली। रात भर इंतजार करने वाला, रात भर जागने वाला। और कलाम में लिखा है अमाल की किताब उसका 2 बाब। अब इस अनपढ़ को जरा गौर करें, इस पर हम गौर करें, जिसे हम कहते हैं ये बड़ा अनपढ़ है, ये अनपढ़ है, ये बाइबल का अनपढ़ है। बाइबल का अनपढ़ क्या है इसको देखते हैं। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि यहूदियों, यरूशलेम के रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहले ही दिन चढ़ा है। योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। इसको हम कहते हैं जी ये अनपढ़ है। ये कौन कहते हैं? जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने मेहनत नहीं करनी। अनपढ़ होना भी, मेरे उस्ताद कहा करते थे, अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है, जाहिल होना बुरी बात है। और मिसाल की किताब में शुरू में यही कहा गया, हम अहमक जो है, जाहिल जो है, ये कहते हैं वो हिकमत को वो छड्डो पर काम चल रहा है चलाई रखो। और यहां पर जिस शख्स को हम कहते हैं जी अनपढ़ है, वो रेफरेंस कहां से दे रहा है? पुराने अहदनामे से, और पूरा ठीक ठीक रेफरेंस दे रहा है। कहते हैं योएल नबी की किताब में लिखा है, इधर डिंगा मार मुर के जान नहीं छुड़ाई, इधर दी गल उधर ते उधर दी गल उधर, इधर है ते इधर हो, ऐ नहीं किता, सीधी कलाम की बात। और क्या जी योएल नबी की किताब में लिखा है। क्या आप मुकद्दस पतरस पढ़े लिखे नहीं थे? पौलुस जितना बड़ा आलम कौन सा था जिसने खत इतने लिख दिए? जो रबी कहते जी मैं तो गमलीएल से मैंने तालीम पाई है, ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। और मैं कहूंगा ना सिर्फ अपने वक्त का बल्कि रहती दुनिया का। आफ्टर जीसस क्राइस्ट ही वाज द ग्रेट स्कॉलर। यीशु मसीह के बाद वो एक बड़ा स्कॉलर है मसीहत में, जिसने ऐसी ऐसी तालीम लिख दी, ऐसा कुछ लिख दिया जो आज तक उस पर हम काम कर रहे हैं। और कलाम में यहां पर मुकद्दस पतरस कहते हैं कि भाइयों ये तो योएल नबी की किताब में लिखा है, ये तो पहले लिख दिया गया है, तुम क्यों शक करते हो? कलाम में से अपनी पोजीशन को क्लियर किया है। और ये मुख्तलिफ इलाकों में से लोग आए हुए थे यरूशलेम में ईद मनाने के लिए, और कलाम बयान करता है पेंतिकोस्त मनाने के लिए आए थे। और कलाम में खुदा बयान करता कि जब रूह कुदस का नज़ूल हुआ तो पाक कलाम में लिखा है कि जहां पर वो 120 की तादाद दुआ कर रही थी वो गूंज उठा है, गैर जुबान रूह कुदस की बरकत इन पर आई है। जो जुनून रखते हैं, जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, रूह कुदस उन पर नाज़िल होता है। विद एक्सक्यूज अगर मैं कहूं जी पढ़े, कुछ लोगों को हो सकता है मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने और बड़ी स्टडी सर्टिफिकेट्स डिप्लोमास किए, मास्टर को मैंने 1.5 साल स्टडी की इंग्लिश लिटरेचर को, इन थैंक्स गॉड।
रूट दोस्तों मुझ में भी काम करता है। हमने एक तसव्वुर बना लिया और हमारा जहन बना दिया गया है कि हम शिफाओं के साथ, हम दुआओं के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दुआ के लिए भी मेरा एक अपना एक कोटेशन है, हार्ड वर्क एंड वेरी प्रेयर मेक्स योर एम वेरी क्लियर। मेहनत और दुआ से आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते तो फिर आप मैट्रिक पास नहीं कर सकते। दुआ चाहे जितनी मर्जी करते रहे दुआ, और करवाते रहे दुआ। दुआ के लिए भी तो हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। या तो घुटने टेकने पड़ेंगे, हिम्मत करनी पड़ेगी, या खड़े होकर दुआ करनी पड़ेगी, या बैठकर दुआ करनी पड़ेगी। हिम्मत तो करनी पड़ेगी, वक्त तो देना पड़ेगा। देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है हर काम का, और खुदा ये चाहता है कि उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाए। अगर आप उस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर भी खुदा आपकी नहीं सुनेगा। गिव एंड यू विल बी गिवन, दोगे तो तुहानू दिता जाएगा। एक प्रोसेस आ गया ना, तुसी दोगे तो मैं तुहानू दवांगा। इबादत करोगे तो मैं शिफा दे दांगा। देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक तरीकाकार है। हम तरीकेकार को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने स्कूल नहीं जाना, हमने पढ़ना नहीं है, हमने होमवर्क नहीं करना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, फिर साढ़ा होते जी मैट्रिक भी कर ली। और झूठ बोलते हैं लोगों से, अभी तो मैट्रिक किया है। और मैट्रिक वाले को पूछो ना हैप्पी के स्पेलिंग क्या, तो हैप्पी के भी वो HEPPY बता देगा। हालत तो हमारी ये होगी। फिर मैरी के को तो उसने कहना MARRY। मैरी क्रिसमस के पूछ रहे तो MARRY मैं मैरी बन जाए, तो फिर हमारा हाथ तो ऐसे ही होगा। सो जिंदगी में अपने सामने वंस अगेन, हेलो बस करो भाई। जिंदगी में जो वक्त गुजर गया कोई बात नहीं, चले यहां पर भी जो वक्त गुजर गया कोई बात नहीं, लेकिन आज अपनी जिंदगियों में आसफ भाई आप भी अलग सीखना शुरू कर दें। फिर चाहते कि ये पढ़े। जो माएं, जो बुजुर्ग, जो बाप, जो बेटियां अगर चाहती हैं जिंदगी में कामयाब होना, या माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, तो बच्चों के साथ आपको भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। बातें आज जरा सुस्ती वाली आपको महसूस होंगी और चुभने वाली होंगी आज जरा। और ये आप ही को नहीं, मुझे तो वैसे परेशानी रहती है। मुझे तो रात रात भर नींद नहीं आती अपने लोगों की हालत देखकर, अपने लोगों की हालत देखकर नींद नहीं आती कि किस तरफ जाएंगे, क्या होगा इनका। और ये जो भी आज इसको रिकॉर्डिंग सुनेगा उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो माएँ सुनेंगी उनके लिए एक चैलेंज है कि आपने पढ़ना शुरू करना है, आपने बच्चों को देखना शुरू करना है एजुकेशन की तरफ। जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ मोबाइल। हम मोबाइल को बड़ी वैल्यू देते हैं, मोबाइल की जरूरत नहीं है, किताब की जरूरत है, पेन की जरूरत है, फिर जिंदगी आगे बढ़ेगी। तालीम को अहमियत दें। एक कॉपी और एक पेन आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। और अगर आपने एक कॉपी और पेन ना लिया तो फिर गली में, मोहल्ले में परेशानियां, डिस्टर्बेंस, और फिर ये मसाइल चलते रहेंगे। तो जरूर आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि कलाम खुदा में हमने देखे 3 अदवार। मुकद्दस डैनियल की जिंदगी, पहले भी पढ़े लिखे शरीयत को जानते थे, और जब कसदियों के इल्म की बात आई तो वो भी 3 साल लगाकर सीख लिए। आज जैसे कि नहीं यार हफ्ते च एक दिन आ जाओ, असी इतना सबक पढ़ा देंगे, सही वाला सबक, हम इतना सबक पढ़ा देंगे कि आपके 6 दिन गुजर जाएंगे। कुछ और भी सबक पढ़ाते हैं ना, हम वो वाला नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको इतना काम दे देंगे कि 6 दिन आप बेहतर हो जाएंगे। और बच्चों के लिए हमने कहा चले हम इंग्लिश, बाइबल, उर्दू सब कुछ आपको बताएंगे। हम हफ्ते में 1 दिन देने के लिए तैयार नहीं। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये सभी जगह ऐसे है। बाइबल कॉलेज लोग शुरू करते हैं, 30 स्टूडेंट होते हैं, 3 हफ्ते के बाद 10 रह जाते हैं, 3 के बाद और खत्म। सीखने का नो ट्रेंड। शादी हॉल में जाकर हम 2 घंटे बैठ जाते हैं, जाते जरा लेट ही 2 घंटे वहां पे दे लेते हैं।
हर जगह हमारे पास वक्त है, वक्त नहीं है तो वो पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। सो आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लेटर ऑन हम इसके लिए दुआ भी करेंगे ताकि कलीसिया में तालीम का शौर जो है, सीखने का शौर जो है वो पैदा हो जाए। इल्म से मोहब्बत तो हम चर्च में बैठे तो फिर भी हमारी बातें खत्म नहीं होती, हालांकि हमें एक दूसरे के घरों का पता होता है। तो फिर जब बातें खत्म नहीं होंगी तो पादरी का मैसेज ही लंबा होगा, फिर नहीं सुने और सुनो, फिर अभी होता बनता तो ये है, फिर आई शुड कंटिन्यू। सबके लिए तालीम हासिल करें। हम सब अपने सरों को झुकाएं और जब भी कोई इस रिकॉर्डिंग को भेजता है जरूर, जब भी आप देखें अपने हाथों को उठा लें एंड प्रे फॉर द जनरेशंस। अपनी नस्लों के लिए दुआ करें, दुआ करें हमारी जिंदगियां तरतीब पा जाए। हम बदहाली का शिकार क्यों हैं, हम परेशानियों का शिकार क्यों हैं, हमारी जिंदगियों में दुख क्यों है, हमारी जिंदगियां क्यों सेहतयाब मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो रही। बर्रे का खून लेते हैं, बदन लेते हैं, सब कुछ तो करते हैं, फिर क्यों, क्या कमी है हमारी जिंदगियों में। प्यारे आसमानी बाप तो रहम कर, यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा, मेरे पाक खुदा, इस कौम के मेरे खुदा माओं को जगा दे। खुदा मेरे पाक खुदा, बाप है मेरे खुदा, मुतहरक हो जाए यीशु मसीह के लिए। मेरे खुदा तुझे वक्त देना शुरू कर दे, तालीम पर मेरे खुदा गौर करें। मेरे खुदा अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजें, मेरे खुदा अपने बच्चों को मेरे साथ बैठें ताकि मेरे खुदा बच्चे पढ़ें लिखें मजबूत हों, इनकी जिंदगियों से तेरे नाम को छुड़ा लें। और खुदा इस वक्त मेरे खुदा आए हुए तमाम अजीज़ों के लिए और तमाम मेरे खुदा पाकिस्तान की कलीसिया के लिए और बैनुल अक़वामी कलीसिया के लिए, इंटरनेशनल चर्च फॉर द इंटरनेशनल चर्च, खुदा मैं दुआ करता यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा लोग खुदा तेरे लोग पढ़ें लिखें मजबूत हों, इनकी जिंदगियों से तेरे नाम को छाड़ दें। तेरा शुक्र करते यीशु मसीह के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा